Good morning, children. Today we will solve some questions related to the topic elimination of trigonometric ratios from R.S. Agrawal. The first question of this topic is, if a cos theta plus b sin theta is equal to m and a sin theta minus b cos theta is equal to n. It means value of m and n are given. You have to prove m square plus n square is equal to a square plus b square. It means this is the LHS and this is the RHS. First you have to write LHS. Just I have written here LHS is equal to m square plus n square, and value of m and n are already given. You put the value of m and n. M is equal to a cos theta plus b sin theta whole square plus n is equal to a sin theta minus b cos theta whole square. Now here this is a plus b whole square. In place of a cos theta, and in place of b there is b sin theta. Similarly here a minus b whole square. Here in place of a sin theta, and in place of b it is b cos theta. So just use the formula a plus b whole square, and here a minus b whole square. No space is there, therefore I am writing from this side a plus b whole square. A square plus b square plus 2ab. 2ab cos theta into sin theta. Now this plus sign have to write plus a minus b whole square. A square plus b square minus 2ab into sin theta into cos theta. अब देखो इसमें प्लस 2ab sin theta cos theta माइनस 2ab sin theta cos theta ये दोनों कैंसिल हो जाएगा. We have to prove a square plus b square. The RHS is a square plus b square. तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें से a स्क्वायर वाले टर्म को कॉमन ले लेंगे. a स्क्वायर कॉमन लेते हैं, यहाँ पर बच जाता है cos स्क्वायर और यहाँ पे बच जाता है साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा. प्लस बी स्क्वायर फिर से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बच जाएगा साइन स्क्वायर और यहाँ पे बच जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. You know that sin square plus cos square is 1, therefore it will be a square into 1 plus this is b square into 1. A square into 1 is a square and b square into 1 is b square, and this is the RHS. In this way you can solve the second question also. Second question is same as question number 1, therefore question number 2 will be homework for you. Now question number 3. Question number 3, x by a sin minus y by cos is equal to 1 and x by a cos plus y by b sin is equal to 1. This is given, and you have to prove x square by a square plus y square by b square is equal to 2. तो 2 कैसे आएगा, 1 प्लस 1 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 आएगा. और इसमें एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कैसे आएगा, यदि इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो ए स्क्वायर ये बनेगा तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आएगा. ये बी स्क्वायर बनेगा तो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आएगा. तो हम लोग क्या करेंगे, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे जो गिवन है इसको, और इसको ऐड कर देंगे. दोनों को स्क्वायरिंग बोथ साइड करो और दोनों को ऐड कर दो तो 1 और 1 2 ऑलरेडी आ जाएगा RHS में. तो फर्स्ट दिस वैल्यू इज गिवन. पहला ये वैल्यू दिया हुआ है, दूसरा ये वैल्यू दिया हुआ है. तो पहले इस वैल्यू को लिखना है और स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है. गिवन x बाई ए साइन थीटा माइनस y बाई बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1. नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, यदि स्क्वायरिंग बोथ साइड इसको करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स
तो क्या होगा x बाई ए साइन थीटा माइनस वाई बाई बी कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। ये हो जाएगा ए माइनस बी होल स्क्वायर, हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इन प्लेस ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इन प्लेस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू एक्स बाई ए इंटू वाई बाई बी इंटू साइन इंटू कॉस थीटा is equal to 1 square is 1, just you can write 1, no need to write 1 square. This is equation 1. Similarly, second value is given x by a cos theta plus y by b sin theta is equal to 1. तो इसको भी लिखेंगे और लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा x बाई ए, नाउ x बाई ए cos theta plus y by b sin theta whole square is equal to 1 square by using squaring both side. तो अब यहाँ पर है a प्लस बी होल स्क्वायर, तो इसको तोड़ दो a प्लस बी होल स्क्वायर में, a स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इन प्लेस ऑफ ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इन प्लेस ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स बाई ए इंटू वाई बाई बी इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 हो गया। दिस इज इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कर देते हैं। तो हम लोग को प्रूव क्या करना है, हम लोग को प्रूव करना है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो हम लोग एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाले टर्म से कॉमन लेंगे, फिर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर वाले टर्म से कॉमन लेंगे। तो यदि हम लोग कॉमन लेते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाला टर्म कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर, और एक एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वेशन 2 में है, यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर। यदि दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉमन और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बाई एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो हम लिखेंगे बाई एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, बाई एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या बचा था साइन स्क्वायर और यहाँ पर कॉस स्क्वायर, यहाँ साइन यहाँ पे कॉस, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब सेकेंड में लेना है वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। यदि वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा कॉस स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज कॉमन एंड इन ब्रैकेट वी हैव टू राइट कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज कॉमन एंड कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब RHS में क्या है, RHS में इन इक्वेशन 1 इट इज़ 1 एंड इन इक्वेशन 2 1, तो 1 प्लस 1 2, तो 1 प्लस 1। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू 1 बिकॉज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इंटू 1 बिकॉज कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज ऑल्सो 1, तो 1 इंटू वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर एंड दिस इज 1 प्लस 1 2 एंड दिस हैव टू प्रूव्ड। अरे प्रूव हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 3 प्रूव हो चुका है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और 5 डिस्कस कर लेते हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन आप बना सकते हैं खुद से, तो ये एज ए होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। इसमें करना क्या है, यहाँ m का वैल्यू दिया हुआ है, m इज़ गिवन
and n is also given. Value of m and n both are given. You have to prove m into n is equal to 1. तो क्या करना है, m का वैल्यू रखना है, फिर n का वैल्यू रखना है, दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई. m की जगह रखेंगे sec प्लस 10 और n की जगह लिखेंगे sec माइनस 10, तो हो जाएगा sec प्लस 10 इंटू sec माइनस 10. तो इससे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे, इसलिए कि ये एक फार्मूला में है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इट मीन्स सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, और सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर का वैल्यू होता है 1. ये 1 प्रूफ हो जाएगा. सेम एज क्वेश्चन नंबर 5 भी है. तो 4 और 5 आप दोनों ही क्वेश्चन बना लेंगे. मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करके बतलाता हूँ. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है. क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है x इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू. एक्स का वैल्यू गिवन है a cos क्यूब थीटा, y का वैल्यू गिवन है b sin क्यूब थीटा. अब प्रूफ क्या करना है, x बाई ए टू द पावर 2/3 प्लस y बाई बी टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू 1. तो पावर 2/3 है और x बाई ए प्लस y बाई बी यहाँ पे है. इट मीन्स हमें x बाई ए चाहिए LHS में और RHS में 1 लाना है. तो हम लोग को चाहिए क्या, x बाई ए. यहाँ पर x का वैल्यू दिया हुआ है, क्या यहाँ से हम लोग x बाई ए का वैल्यू ला सकते हैं, तो ज़रूर ला सकते हैं. ये इधर जो RHS में है मल्टीप्लाई में है, जब LHS में जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा. तो हम लोग लिख सकते हैं x बाई ए इज इक्वल टू कॉस क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा. सिमिलरली y बाई बी, बी इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा. तो हो जाएगा y बाई बी इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा. अब हम लोग को LHS में क्या करना है, जहाँ पे x बाई ए है वहाँ पे कॉस क्यूब थीटा रखना है, और जहाँ y बाई बी है वहाँ पे साइन क्यूब थीटा रखना है. तो हम लोग यूज़ करते हैं x बाई ए की जगह क्या रखेंगे, कॉस क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा. अरे पहले से पावर 2/3 है, इसको भी हमें लिख लेना है. प्लस y बाई बी की जगह क्या रखेंगे, साइन क्यूब थीटा. तो लिखेंगे साइन क्यूब थीटा टू दी पावर 2/3. ये पावर को हम लोग लिख लिए. वो हम लोग जानते हैं पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है आपस में. तो क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा, कॉस थीटा टू दी पावर 3 इंटू 2/3. ये 3 भी पावर में है, 2/3 भी पावर में है, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई में हो जाएगा. सिमिलरली यहाँ भी साइन थीटा टू द पावर 3 इंटू 2/3, 3 इंटू 2/3. अब देखते हैं कुछ कैंसिल हो सकता है, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा. तो बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. कॉस थीटा का होल स्क्वायर या कॉस स्क्वायर थीटा दोनों सेम चीज़ है. साइन थीटा का होल स्क्वायर या साइन स्क्वायर थीटा दोनों ही एक ही है. हम इसको ब्रैकेट लगा के बाहर में पावर लगाएं या इसी में पावर लगाएं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का वैल्यू होता है 1. और यही हम लोग को प्रूफ करना था. तो ये RHS प्रूफ हो चुका है. इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी ईजी है, बहुत टफ नहीं है. अब इसे भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं. नाउ विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 ये दोनों ही इजी क्वेश्चन है, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं. मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ 7 और 8 के बारे में. ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, 7 और 8 क्वेश्चन भी. क्वेश्चन नंबर 7 में जो वैल्यू दिया है वो m का वैल्यू है और n का वैल्यू है. वैल्यू ऑफ m एंड n आर गिवन एंड यू हैव टू प्रूव m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16mn. तो LHS में जो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर है उसमें m और n का वैल्यू आपको पुट करना है. जब m का वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा tan प्लस साइन होल स्क्वायर, जिसको a प्लस b का होल स्क्वायर में फिर तोड़ लेना है. फिर जब n का वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा साइन tan माइनस साइन होल स्क्वायर, इसे भी a माइनस b का होल स्क्वायर में तोड़ लेना है. इसके बाद जब हम इसे अरेंज करेंगे तो आज लास्ट में आएगा 16mn, है ना. उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 में भी, क्वेश्चन नंबर 8 में जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में
सॉल्व किए थे, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 में भी m का वैल्यू गिवन है, n का वैल्यू गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में m और n, m की जगह रखना है cot थीटा प्लस tan थीटा और n की जगह रखना है sec थीटा माइनस cos थीटा। इसे भी रख के प्रूफ किया जा सकता है। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 प्रूफ करके दिखलाता हूँ। आप क्वेश्चन नंबर 7 और 8 खुद से प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 प्रूफ करके। क्वेश्चन नंबर 9 में a क्यूब का वैल्यू गिवन है जो कॉसेक और साइन के फॉर्म में है, और b क्यूब का जो वैल्यू गिवन है वो सेक और कॉस के फॉर्म में है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक कॉसेक को भी साइन में कन्वर्ट कर लेंगे और सेक को भी कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे और इसमें से a और b का वैल्यू पुट कर लेंगे। तो ये पहले a और b का वैल्यू साइन और कॉस के फॉर्म में हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ गिवन है कॉसेक माइनस साइन इक्वल टू a क्यूब। यदि कॉसेक को साइन में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 1/sin माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू a क्यूब। जिसको एलसीएम हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू a क्यूब। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और एक क्यूब जब इस तरफ आ जाएगा तो हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू a। तो इससे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग इससे, या ऐसे ही हम छोड़ सकते हैं इसको, बाद में फिर जब LHS में इसको वैल्यू पुट करेंगे तो एडजस्ट कर लिया जाएगा। ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू a। ये a का वैल्यू हो गया। उसी तरह से हम लोग यहाँ से b का वैल्यू निकाल लेंगे। b का वैल्यू जब निकालेंगे तो सेक को यदि कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 1/cos। तो 1/cos हो जाएगा ये माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू p क्यूब। अब फिर इसी तरह से हम लोग इसको एलसीएम लेंगे तो वो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा टू द पावर 1/3। इसलिए कि जब पावर a का पावर जब 3 था, सॉरी पावर b का पावर 3 था, और 3 जब पावर इस तरफ आ जाएगा तो होगा 1/3। तो इस तरह से v का वैल्यू आ गया साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा टू द पावर 1/3, और a का वैल्यू हम लोग पास है कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा टू द पावर 1/3। तो सिर्फ a और b का वैल्यू है, a क्यूब और b का क्यूब का नहीं, ओनली a और b का वैल्यू मेरे पास में अभी है। तो अब हमें जो प्रूव करना है वो है a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, जो ब्रैकेट का बाहर a स्क्वायर b स्क्वायर है उसको इसके साथ में पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यदि इसके साथ अब बिना मल्टीप्लाई किए भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो यदि इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हो जाएगा a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर a टू द पावर 4 एंड b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू b स्क्वायर b टू द पावर 4 इंटू a स्क्वायर। अब a का जो वैल्यू हमारे पास में है उस वैल्यू को हम लोग यहाँ रखेंगे, और b का ही वैल्यू, a का वैल्यू है कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा टू द पावर 1/3। a है कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा टू द पावर 1/3, और पावर 4 यहाँ पे है तो इंटू पावर 4 हो जाएगा। ये पावर 4 आपको लिखना है। इंटू b का वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर बाई कॉस टू द पावर 1/3। तो b की जगह रखेंगे साइन स्क्वायर बाई कॉस, साइन स्क्वायर बाई कॉस टू द पावर 1/3, और यहाँ पहले से पावर 2 है तो पावर 2 इसमें आ जाएगा। प्लस साइन, इस तरफ मेरा जगह नहीं है तो मैं आपको नीचे लिख के दिखाता हूँ, प्लस b का पावर 4,
v का वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा टू द पावर 1/3 और पावर 4 यहाँ पहले से है, इनटू a का वैल्यू है कॉस स्क्वायर बाई साइन, तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर बाई साइन टू द पावर 1/3 और पावर 2 यहाँ पहले से है। तो इस तरह से हो जाएगा ये। जब हम इसको रिड्यूस करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा ये 1/3 इंटू 4 हो जाएगा 4/3। अब पावर का पावर आपस से मल्टीप्लाई होता है तो हो जाएगा 2 4 जा 8/3। तो हम लोग इसको लिखेंगे कॉस थीटा टू द पावर 8/3 डिवाइडेड बाय, इसका पावर 1 है इसलिए 4/3 ही रहेगा, तो हो जाएगा साइन थीटा टू द पावर 4/3 इंटू, इसी तरह से यहाँ पे ए पावर और ए पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, तो हो जाएगा साइन थीटा टू द पावर 4/3 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा टू द पावर 2/3, कॉस थीटा टू द पावर 2/3। अब ये प्लस वाले को भी आपको लिखना है, यहाँ पे प्लस वाले को मैं लिख लेता हूँ, तो हो जाएगा साइन का पावर साइन स्क्वायर है तो पावर 2 इंटू 4, तो 4 इंटू 2 8, तो हो गया साइन थीटा टू द पावर 8/3 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा टू द पावर 4/3, कॉस थीटा टू द पावर 4/3 इंटू कॉस स्क्वायर है अरे पावर 2 है तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, तो हो गया कॉस थीटा टू द पावर 4/3 बाय साइन थीटा टू द पावर 2/3, साइन थीटा टू द पावर 2/3। अब देखिए इसमें कुछ कैंसिल होगा, जैसे साइन थीटा टू द पावर 4/3 और यहाँ भी साइन थीटा टू द पावर 4/3, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है तो कैंसिल हो गया। सिमिलरली कॉस थीटा टू द पावर 4/3 कॉस थीटा टू द पावर 4/3 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे बचा हुआ है कॉस थीटा टू द पावर 8/3 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा टू द पावर 2/3। तो हम लोग जानते हैं कि यदि डिवाइड में सेम बेस हो तो पावर आपस में सब्ट्रैक्ट होता है, तो दोनों पावर माइनस हो जाएगा, तो होगा 8/3 माइनस 2/3। तब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा टू द पावर 8/3 माइनस 2/3। कैसे लिखे? कॉस थीटा टू पावर 8/3 माइनस 2/3, दोनों बेस में से 1 बेस लिखा जाता है, अब पावर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। आपको मालूम होगा हम लोगों ने क्लास 8 में से पढ़ा है कि यदि x टू द पावर a बाई x टू द पावर b है तो हम लोग लिखते हैं इसको x टू द पावर a माइनस b, ये फार्मूला है। तो यहाँ x की जगह है cos और पावर a b की जगह है 8 का पावर 3 8 का पावर 3। तो पावर आपस में माइनस हो जाता है जब वो सेम बेस वाला नंबर डिवाइड में हो तो। सिमिलरली यहाँ पर भी हो जाएगा साइन थीटा टू द पावर 8/3, तो साइन थीटा टू द पावर 8/3 और ये 2/3 माइनस में हो जाएगा 2/3। तब होगा कि हमारे पास में 8/3 माइनस 2/3 तो हो जाएगा 6/3, तो कॉस थीटा टू द पावर 6/3 प्लस साइन थीटा टू द पावर 6/3, 8 माइनस 2 इक्वल टू 2, इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 2 3 2 जार 6। तो बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो इस तरह से हमारा RHS आ गया 1, ये प्रूफ हो गया RHS। तो इस तरह से आप चाहें तो इससे मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, बिना मल्टीप्लाई किए भी यदि इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करके दिखलाता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 एंड प्रूफ करना है 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो ये दोनों ही में सेम नंबर है एक तरह से, तो यदि इसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 2ab का जो टर्म आएगा वो होगा 2 3 जा 6 2 जा 12 साइन इंटू कॉस, यहाँ भी 12 साइन इंटू कॉस होगा 2ab की जगह में।
तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो गिवन है इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे और 2ab का जो वैल्यू है वो यहाँ से निकाल लेंगे और उस वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर सकते हैं जो हमें प्रूव करना है इसमें से। आपको ध्यान रखना है, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है और 2ab की जगह जो टर्म आएगा उसका वैल्यू हमें फाइंड कर लेना है, जिसे यहाँ पुट करना पड़ेगा। तो गिवन है 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर हो जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर हो जाएगा 9 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा 12, ab मतलब साइन इंटू कॉस, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2a स्क्वायर इज 4। अब आपको इसमें से 2ab का टर्म ए है तो 12 साइन इंटू कॉस का वैल्यू निकाल लेना है। तो क्या हो जाएगा, 12 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो ये सारा टर्म उधर हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। आपको ध्यान रखना है सारे टर्म को उस तरफ ले जाना है, तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 9 कॉस स्क्वायर थीटा। एक उसको इक्वेशन 1 कर देते हैं हम लोग। ये 12 साइन इंटू कॉस का वैल्यू है। अब आपको जो प्रूव करना है उसमें LHS में क्या है, 3 साइन माइनस 2 कॉस। तो हम लोग क्या करते हैं, जो LHS में है उसी को लेते हैं, 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। अब देखिए हमको इसका वैल्यू निकालना है, लेकिन हमें पहले इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं, फिर स्क्वायर हटा के इसका वैल्यू निकालेंगे। स्क्वायर जब लगाएंगे तभी 2ab वाला टर्म आएगा, 12 साइन इंटू कॉस। तो इसको स्क्वायर करेंगे तो आएगा a स्क्वायर 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस b की जगह 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab की जगह फिर से आएगा 3 2 जा 6 2 जा 12 साइन इंटू कॉस। अब आपको क्या करना है, 12 साइन इंटू कॉस का वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट करना है। तो हम लोग का हो जाएगा 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, इसके जगह पर रखेंगे ये 4, जब माइनस साइन है इसलिए सारे का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा। ये कहाँ से हम लोग रखे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर भी आ रहा है, देखिए दोनों 9 है, ये दोनों 9 वाले टर्म को कॉमन लेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। 9 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर प्लस ये वाला कॉस स्क्वायर। ये दोनों टर्म से आपको 9 कॉमन लेना है और ये दोनों टर्म से 4 कॉमन लेना है। यदि 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा कॉस स्क्वायर और यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। और ये -4 अभी तक कहीं कॉमन नहीं आया है, तो -4 को आपको जस्ट राइट डाउन कर लेना है यहाँ पे। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1, तो यहाँ सिर्फ बच गया 9। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर भी होता है 1, तो यहाँ सिर्फ बच गया 4 माइनस ये 4, तो +4 -4 कैंसिल हो गया तो बच गया 9। अब देखिए हमें 3 साइन माइनस 2 कॉस का वैल्यू निकालना है, स्क्वायर नहीं चाहिए। तो अब हम लोग लिखेंगे सिंस 3 साइन माइनस 2 कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लोग का क्या आया, 9 आया। तो स्क्वायर यदि इस तरफ हम लोग हटाएंगे तो उधर जाकर रूट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर 3 साइन माइनस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू √9। अब हम लोग जानते हैं जब रूट अंडर हम लोग करते हैं तो ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। क्यों, इसलिए कि +3 का स्क्वायर भी 9 होता है और -3 का स्क्वायर भी 9 ही होता है, इसलिए हम लोग प्लस और माइनस दोनों यूज करते हैं, दोनों साइन। तो इसका जो आंसर आएगा वो +-3। और यही हमें प्रूव करना था, तो RHS प्रूव हो चुका है। इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आप बचे हुए क्वेश्चंस को भी इसी ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज इतना ही।